اس نے زبردست قسم کی ایک جو ہمیں کریٹ کر کے دے دی ہے امیج. دیکھیں مزہ آ گیا جی. ٹھیک ہے جی, اس امیج کو اس نے جنریٹ کیا ہے, چس نہیں آ گئی. اب یہ دیکھیں. السلام علیکم, میں ہوں عدنان اور آپ دیکھ رہے ہیں اے آئی ود عدنان. آج کی اس ویڈیو میں ہم چیٹ جی پی ٹی کا مکمل تعارف کروائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ اس میں کس طرح کام کیا جا سکتا ہے. اس کے لیفٹ سائڈ پر آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ مختلف ٹیبز بنے ہوئے ہیں. نیو چیٹ, سرچ چیٹس, لائبریری, ایپس, ڈیپ ریسرچ, کوڈیکس, جی پی ٹیز, پروجیکٹس. ان کو ایک ایک کر کے ہم ایکسپلور کرتے ہیں کہ اس میں کس طرح ہم ورک کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے جب ہم چیٹ جی پی ٹی کو اوپن کریں گے تو کچھ ہمیں اس طرح کا انٹرفیس جو ہے وہ نظر آئے گا. ٹھیک ہے جی, یہاں سے ہم جب آپ اوپن کریں گے تو یہ آپ کو اس طرح نظر آئے گا. یہاں پر تھنکنگ لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا. یہاں سے آ کر ہم اس کی صلاحیت جو ہے وہ تبدیل کر لیں گے کہ یہ ہمیں جو رپلائی ہے فوراً رپلائی کرے, تھنکنگ پر کرے, یعنی تھوڑا سوچ سمجھ کر رپلائی کرے. جو کمپلیکس کویسچنز ہیں ان کو بھی یہ سولو کرے. تو یہاں پر ہم تھنکنگ کو کر لیں گے تاکہ یہ ہمارا میڈیم ٹائم لے. بعض دفعہ 7 سیکنڈ, 10 سیکنڈ, 15 سیکنڈ یہ ٹائم لے کر آنسر کرتا ہے. پرو پہ کریں گے تو یہ اور زیادہ ٹائم لے گا. تھنکنگ میں بھی ہم اس کو کنفیگر کے اندر جا کے مزید چینج کر سکتے ہیں. یہاں سٹینڈرڈ لکھا ہوا ہے تو یہاں ہم اس کو ایکسٹینڈڈ کر سکتے ہیں. تو اسی طرح یہاں سے ہم اس کا لیٹسٹ ماڈل سلیکٹ رکھیں گے. یہ آٹومیٹکلی لیٹسٹ ہی سلیکٹ ہوتا ہے, یہی سلیکٹ رہنے دینا ہے. تو یہاں سے جو چیٹ ہے یہ اس کو ہم اگر اس کو اوپن کریں گے تو یہ ٹیمپریری چیٹ جو ہے وہ اوپن ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, یہ فار ایگزامپل ہم کنٹینیو کرتے ہیں تو یہ ساری ٹیمپریری چیٹ ہیں جو آٹومیٹکلی ڈیلیٹ ہو جائیں گی. تو یہاں سے ہم نے کیونکہ ٹیمپریری چیٹ اس کو نہیں کرنی, اس کو آف رکھنا ہے ہم نے. جس نے ٹیمپریری چیٹ کرنی ہو تو اس کو ٹیمپریری چیٹ پر کلک کر سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب ہم اس کو یوز کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو کس طرح یوز کرنا ہے, اس سے ہم نے کس طرح کام لینا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, چیٹ جی پی ٹی کو ہم جتنی کلیئر انسٹرکشنز دیں گے, جتنی کلیئر بات اس کو بتائیں گے, جتنی اچھے طریقے سے ہم اس کو ہدایت دیں گے اتنے اچھے طریقے سے اس کا رپلائی آئے گا. اگر ہم اس کو انکلیئر بات بتائیں گے, اس کو مجہول بات بتائیں گے, ہماری ہدایت جو وہ کلیئر نہیں ہوگی, اتنا اس کا برا رزلٹ آئے گا. آپ نے اس کو ہمیشہ یوں سمجھ کر یوز کرنا ہے جیسے آپ ایک پرائمری کے بچے کو کوئی بات سمجھا رہے ہوں. آپ اس کو اس طرح بات کریں گے تو اس کا رسپانس بہت اچھا آئے گا. جیسے ہم یہاں پر ایک بات لکھ دیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہانی لکھو. اب یہ ہم نے کوئی ایسی واضح بات نہیں کی. ٹھیک ہے جی, حالانکہ اس کا ابھی ہم نے تھنکنگ موڈ آن کیا ہوا ہے. انسٹنٹ کریں گے تو اور برا رزلٹ ہو جائے گا. یہاں اس کو کہانی لکھو. اب یہ کیا ہے, ہماری اس کو پرومپٹ کہتے ہیں, اس کو ہدایت بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ ہم نے کوئی واضح نہیں کیا, ہم نے اس کو کچھ نہیں بتایا کہ ہم نے کس زبان کے اندر لکھنی ہے, کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا. ٹھیک ہے, یہ ابھی جو اردو کے اندر لکھ رہا ہے, چونکہ میں کہانیاں اردو میں لکھواتا ہوں تو اس لیے یہ تھوڑا سا ٹرین ہوا ہے. اور ہر جو ٹیب ہے, ٹھیک ہے, وہ ٹیب کیا ہے, ایک علیحدہ بورڈ کے طور پر بھی کام کرتا ہے. یہ دیکھیں میں نے کہانی لکھا تو اس نے کہا کہ میں افسانوی کہانی نہیں لکھوں گا. ٹھیک ہے, اس چیٹ میں تمہارے غیر افسانوی اردو تحریر مناسب ہے, اس لیے سیدھی بات کہانی مانگ کر تم اصل کام سے بھاگ رہے ہو. ٹھیک ہے جی, اصل میں نے یہاں سے ایک چیٹ وہ کیا کیا ہوا تھا پہلے سلیکٹ, اس کو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں. میں نے اس کو ایک ٹرین کیا ہوا تھا, یہ اس حساب سے کام کر رہا ہے. میں اب جاتا ہوں نیو کے اندر, میں اس کو نیو کے اندر جاتا ہوں. ٹھیک ہے جی, اب نیو کے اندر جاتا ہوں تو اس کو میں بتاتا ہوں. اب میں اس کو یہ دیکھو کہتا ہوں نا کہانی لکھو, تو یہ یا تو مجھ سے سوالات شروع کر دے گا یا کوئی کہانی لکھ کر دے دے گا. ابھی دیکھا اس نے کہا کیا کہانی لکھوں اور کیا لکھنا ہے, اس کو کچھ پتہ نہیں کیونکہ اس کو میں نے کوئی بات ہی نہیں بتائی, بس اس طرح کہہ دیا کہانی لکھو. بعض دفعہ یہ کہانی لکھ بھی دیتا ہے لیکن اینڈ میں جا کر پھر سوالات شروع کر دیتا ہے کہ اس کو کس طرح امپروو کرنا ہے, کس موضوع پہ لکھنا ہے, اس کو ڈرامائی بتانا ہے, افسانوی بتانا ہے, کیونکہ میں نے اس کو کلیئر بات بتائی نہیں. اب میں اس کو بتاتا ہوں کہ ایک کہانی لکھو جس میں 2 لڑکے جنگل سے گزر رہے ہوں اور ان کا سامنا ایک جن کے ساتھ ہو جائے, پھر ان کی لڑائی جن کے ساتھ شروع ہو جائے, ان کے ساتھ شروع ہو جائے اور آخر میں ان کے ہاتھوں سے جن مارا جائے. یہ دیکھیں ایک انسٹرکشن ہوگی. مزید اس کو انسٹرکشن دینی ہے. یہ کہانی اردو زبان میں
लिखनी है, किसी और ज़ुबान में नहीं लिखनी। ठीक है जी। ये कहानी 500 अल्फाज पर मुश्तमिल हो। ये कहानी 500 अल्फाज पर मुश्तमिल हो और हर कहानी के आखिर में मुझे 10 और टॉपिक्स भी सजेस्ट करने हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? देखिए, पहले मैं अनक्लियर बात बताई तो उसने मुझसे सवाल करना शुरू कर दिया। मैं इसको बताऊंगा, या मुझे कहानी लिख कर देना शुरू कर देगा। अब ये देखें, क्योंकि मैंने अभी पीछे एक इंस्ट्रक्शन दी हुई थी, इसने अभी भी वही टैब के अंदर मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है। तो मैं इसको कहता हूँ कि अब इस टैब में मैंने कहानियाँ लिखवानी हैं। मेरी इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो और फिक्शन लिखकर दो और अभी के लिए नॉन फिक्शन छोड़ दो। क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले वर्क कर रहा था, जैसे कि मैंने व्हाट्सएप चैनल में बताया था कि मैं 2 दफ़ा रिकॉर्डिंग की है मैंने। तो पहली दफ़ा में जब मैंने रिकॉर्डिंग की तो पता चला मैं माइक ऑन करना भूल गया हूँ। तो फिर मैंने दूसरी दफ़ा रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। जब मैं दूसरी दफ़ा रिकॉर्डिंग करके हटा तो पता चला कि मैंने रिकॉर्डिंग ही स्टार्ट नहीं की। तो 2 दफ़ा मुझे 40 मिनट की रिकॉर्डिंग जो है वो ऑन करनी पड़ी। तो उसमें मैंने इसको एक इंस्ट्रक्शन देकर पाबंद किया था कि नॉन फिक्शन जो है वो आपने नहीं लिखनी। तो इस वजह से वो बार बार रुकावट डाल रहा है। अभी देखिए, अभी भी वो मुझे नहीं लिख कर दे रहा। तो अपना कहते हैं कि मैं दोबारा एक न्यू चैट के अंदर इसको दोबारा फिर ट्राई करता हूँ। तो यहाँ से मैं ये कर लेता हूँ। तो लेकिन इससे पहले मैं इसको एक हिदायत देता हूँ कि मैं इस टैब में फिक्शन स्टोरीज़ पर, उर्दू स्टोरीज़ पर काम करूँगा। तो आपने मुझे कहानियाँ लिख कर देनी हैं। जी, एक एरर आ रहा था, उस एरर को मैंने दूर कर लिया है। तो अब उसको मैं अपनी वो कहानी जो थी वो सेंड करता हूँ। तो इंस्ट्रक्शन काफ़ी बाज़ दफ़ा हार्ड हो जाती हैं, तो उस इंस्ट्रक्शन से वो फिर रुकता नहीं है। तो थोड़ा सा टाइम लगना था, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग स्टॉप करके तो उसको ठीक कर लिया है मैंने। तो उसको हिदायत मैंने ये बता दी थी कि आप इस टैब के अंदर आपने कहानियाँ लिखनी है। अभी फ़िलहाल आप नॉन फिक्शन को भूल जाएं, इसमें अब सिर्फ हम फिक्शन पर बात करेंगे। मैंने उसको एक चैट के अंदर फिक्स किया था, लेकिन वो उसको ओवरऑल ले रहा था, तो इस वजह से मुझे उसको चेंज करना पड़ा। तब ये देखें, ये कहानी लिख रहा है। हमने जब पहले उसको क्लियर नहीं दी थी तो कहता क्या कहानी लिखूं। ठीक है जी। तो जब हमने इसको क्लियर चीज़ें बताई, बिल्कुल एक बच्चे की तरह उसको समझाया, तो अब ये देखें वो कितने अच्छे अंदाज के अंदर कहानी जो है वो लिख रहा है। ये देखें कहानी लिख रहा है माशाल्लाह। उस कहानी को पूरा होने वाली, ये कहानी पूरी हो चुकी। और आखिर में उसको हमने कहा था कि हमने अगली 10 कहानियों के मौज़ूआत भी आपने बताने हैं। तो उसको बताते हैं कि नंबर 10 कहानी भी लिख दो। तो वो नंबर 10 कहानी भी लिख देगा। ये क्लियर इंस्ट्रक्शन देने का फ़ायदा होता है। अब हमने उसको पूरी डिटेल नहीं बताई, उसको पता है मैंने 500 अल्फाज की कहानी लिखनी है। ठीक है, उर्दू के अंदर लिखनी है, किसी और ज़ुबान के अंदर नहीं लिखनी। ठीक है, उसने जो मौजू बताया, एक काला संदूक जिसे खोलते ही मुसीबत शुरू हो जाती है, तो उसने वो कहानी खुद ब खुद लिखना शुरू कर दी। ठीक है जी। इसके अंदर हम एक और चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, वो मैं आपको भी एंड में ऐड करके दिखाता हूँ। कहानी उससे और मज़ीद बेहतर हो जाती है। आप उसको शुरू में भी ऐड कर सकते हैं। उससे ये है कि टैब के अंदर ज़्यादा चैट नहीं होती। जितनी ज़्यादा टैब के अंदर चैट होती जाती है, उसका फिर ये नुकसान होता है कि टैब बहुत ज़्यादा जो है वो हैवी हो जाता है। फिर हमारे कंप्यूटर की स्पीड पर जो है वो असर अंदाज होता है। फिर ये स्लो वर्क करना शुरू कर देता है।
और ये कोशिश करें कि एक चैट के अंदर एक ही बात करें, एक ही मौजू रखें। अगर आपने नया मौजू करना हो तो उसको न्यू चैट के अंदर ले जाएं। उससे ये है कि हमारी चैट भी कम रहती है, हैवी भी नहीं होता, और वो टैब जो है वो ट्रेन हो जाता है, उसको समझ आ जाती है कि मैंने इससे क्या करना है। जैसे देखिए उसने कहानी मुकम्मल कर ली। अब क्या कर दी, ये उसने मुझे 10 मौजू और दे दिए। अब मैं कुछ भी नहीं करूँगा, अब मैं लिखूँगा देखिए नंबर 7। अब मैंने क्या कर दी, इंस्ट्रक्शंस जो है वो और कम कर दी। देखिए पहले उसको मैंने पूरी बहुत ज़्यादा क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी, फिर उसके बाद मैंने लिखा नंबर 10 कहानी लिख दो। अब सिर्फ नंबर 7 लिखा है। ठीक है, अभी मैं आपको एक और चीज़ करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये कहानी मुकम्मल हो जाए फिर वो भी करते हैं। इसका फ़ायदा क्या है, अगर आप शुरू में बहुत ही क्लियर हिदायत देंगे, उसको मजहूल बातें नहीं करेंगे, साफ बात करेंगे, क्लियर बात करेंगे, तो वो उस चीज़ को समझते हुए बहुत अच्छे तरीके से वर्क करेगा। अगर शुरू के अंदर ही उसको हम अनक्लियर बात करेंगे, मुख्तसर बात करने की कोशिश करेंगे, वजाहत नहीं करेंगे, बात को सही तरह नहीं समझाएंगे, तो आगे फिर जाके हमें लंबी लंबी प्रॉम्प्ट्स देनी पड़ेंगी। अगर शुरू में हम लंबी प्रॉम्प्ट दे देंगे तो एंड में हमें फिर क्या है, बहुत छोटी प्रॉम्प्ट देनी पड़ेगी। अब जैसे देखिए मैंने सिर्फ 5 लिखा, नंबर 5 लिखा, अभी वो कहानी मुकम्मल कर रहा है। नंबर 5 लिखा तो ये मैंने इसको सेंड की, अब वो कहानी लिख देगा। अब मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट नंबर 5 लिखा। अब उसको समझ आ गई है कि मैं इससे क्या काम करवा रहा हूँ, तो मुझे लंबी लंबी हिदायत देने की उसको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब वो सोच रहा है 5 मिनट के लिए। ये देखें जी, 5 नंबर पर कहानी थी, एक कुआं जिसमें झांकने वाला अपनी दूसरी शक्ल देखे, तो उसने उस कहानी को उन्वान दिया कहानी आईना कुआं। अब उसने ये देखें उस कहानी को लिखना शुरू कर दिया है। अब इस कहानी को और मज़ीद बेहतर कैसे कर सकते हैं, जैसे ये ख़त्म करता है तो मैं आपको बताता हूँ अभी कि किस तरह आपने इसको प्रॉम्प्ट देनी है। असल सारी गेम ही प्रॉम्प्ट की है। प्रॉम्प्ट करके लोग यूँ समझते हैं यार पता नहीं क्या कितनी मुश्किल चीज़ है प्रॉम्प्ट। असल में ये हिदायत ही हैं, आपकी समझाने की सलाहियत है, आप अगले बंदे को किस तरह समझा सकते हैं। अगर आप इसको भी अच्छे तरीके से समझाएंगे तो अच्छा ही रिज़ल्ट मिलेगा। ये नहीं हो सकता कि आप इसको अच्छे तरीके से समझाएं और रिज़ल्ट आपको अच्छा ना मिले। कभी कभार यूँ होता है कि जब चैट बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है तो हम हिदायत दे रहे होते हैं तो वो हिदायत पर अमल नहीं करता। उसका तरीक़ेकार ये होता है कि आप न्यू चैट के अंदर चले जाएं, उसको फिर थोड़ी सी हिदायत देकर दोबारा से काम शुरू कर दें। अब ये देखें ये कहानी है, असल तो इस कहानी को पढ़कर पता चलेगा कि इसने कहानी किस तरह की लिखी है। फिर भी हम पढ़े बगैर इसको कहते हैं कि इस कहानी को इंसानी अंदाज में कर दो, इंसानी अंदाज में लिखो, ताकि पढ़ने वाले को पता ना चले कि ये बोट ने लिखी है। एक और बात हम इसको बता दें, कौन सी कहानी को, ये भी तो उसको बताना, लास्ट कहानी को। वैसे इस कहानी से भी वो समझ जाता, लेकिन उसको लिख दें लास्ट कहानी को। ये हमने इसको कर दिया। अब ये उसको मज़ीद बेहतर कर देगा। जो कहानियाँ लिखने वाले लोग हैं उनको तो फिर भी, माहिर आदमी को तो पता चल ही जाता है कि इसके अंदर बोर्ड का इस्तेमाल हुआ है। जैसे कॉलम वगैरह लिखें तो वो बहुत, ये थी कहानी आईना कुआं, तो ये उसने उसको लिख, ये लो इस कहानी को ज़्यादा फितरी, रवां और इंसानी अंदाज में दोबारा लिख दिया है। अब वो इसको लिख रहा है। तो वो तो इसको पहचान सकते हैं, यानी कि जो माहिर लिखारी होगा बहुत ज़्यादा, उसको तो आइडिया हो जाएगा कि ये चैट जीपीटी से मदद इसकी ली गई है। और जैसे कॉलम वगैरह जो लिखते हैं उनको भी आइडिया हो जाता है कि ये चैट जीपीटी से मदद ली गई, लेकिन आम इंसान को जल्दी आइडिया नहीं होगा कि ये कहानी किससे लिखवाई गई है। ठीक है जी, अब ये देखिए ये एक तरीका है। अब इसको मैं बोल कर भी हिदायत दे सकता हूँ। आप इसको किसी भी ज़ुबान के अंदर हिदायत दे सकते हैं, उर्दू में भी, रोमन उर्दू के अंदर भी, इंग्लिश के अंदर भी, किसी भी ज़ुबान के अंदर। आप इसको इंग्लिश ज़ुबान के अंदर देंगे तो ये बहुत ज़्यादा और अच्छा वर्क करता है, लेकिन आप इसको किसी भी ज़ुबान के अंदर हिदायत दें तो ये अच्छा ही वर्क करता है, बस आपको हिदायत देनी आनी होती हो। अब हम इसको बोल कर बताते हैं, और बोल कर भी आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, बहुत तेज़ नहीं बोलना, आहिस्ता आहिस्ता बोलना है, ताकि ये हमारे जुमलों को समझ सके, उस हिसाब से यहाँ पर ये टैप कर सके। ठीक है जी, अभी हम इसको कहते हैं कि इस कहानी को आप सीन बाय सीन लिख दें। मैंने इस कहानी से YouTube की वीडियो बनानी है, और ऐसे करें, इसके मुझे विजुअल्स भी लिख दीजिएगा ताकि मैं उससे इमेजेस क्रिएट करवा सकूं, और मुझे वॉइस ओवर का भी बता दीजिएगा, और मुझे हर सीन का मौसीकी भी बता दीजिएगा, किस सीन के पीछे मैं कौन सी मौसीकी लगाऊं। ये देखें,
मैं अभी भी थोड़ा तेज़ बोला हूँ, आपने इसे स्लो बोलना है। इसने हिंदी के अंदर टाइप कर दिया, कोई मसला नहीं, कभी कभी ये इस तरह का एरर दे देता है। इसने टाइप वही किया है जो हमने कहा है, इंशाल्लाह जवाब जो होगा वो उर्दू के अंदर ही आएगा। तो ये देखें, ये इसने यहाँ पर एरर दे दिया। अब इसको मैं दोबारा यहाँ से हम इसको रोक देते हैं। कभी कभार ये इस तरह भी करता है। मेरी इस कहानी को सीन बाय सीन लिख दीजिए, मैंने इससे यूट्यूब की वीडियो बनानी है। आप जवाब मुझे उर्दू ज़ुबान के अंदर दें। आपने मुझे हिंदी में जवाब देना शुरू कर दिया है। क्योंकि ये देखें, अब इसने इसको ठीक कर दिया है। कभी कभी इस तरह का एरर आ जाता है तो उसको फ़ौरन स्टॉप करके अपनी हिदायत को ठीक कर लीजिए। ये देखें, ये उसने बता रहा है। बिल्कुल, अब मैं पूरी रहनुमाई सिर्फ उर्दू में दे रहा हूँ, उसने मुझे बता भी दिया है। देखिए, वीडियो का उन्वान उसने बता दिया है, सीन बता दिया है, क्या देखना है, ठीक है जी। देखिए क्या दिखाना है, इस तरह इसकी क्या कहता है वो, आप बनाओ एक पिक्चर बनाओ इसकी, ठीक है। ये उसने मुझे अभी प्रॉम्प्ट जो दी है वो उसने उर्दू में लिख दी है। इस प्रॉम्प्ट को हमने इंग्लिश में कन्वर्ट करवाना होता है। ये हम उर्दू में भी बनवा सकते हैं। या प्रॉम्प्ट क्यों लिखवा रहा हूँ मैं, ये फिर हम आगे जाकर जब कहानी को मुकम्मल जनरेट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा यहाँ प्रॉम्प्ट क्यों लिखवाई है। ये वॉइस ओवर आ गया, ये बैकग्राउंड म्यूजिक आ गया। ये देखिए, उसने मुकम्मल मुझे सीन बाय सीन कहानी लिख कर दे दी है। हम इस कहानी को अल्फाजों के हिसाब से भी लिखवा सकते हैं, मिनट्स के हिसाब से भी लिखवा सकते हैं। यानी जैसे हमने कहानी लिखवानी हो किसी शॉर्ट के लिए, यूट्यूब शॉर्ट के लिए, तो वो तो हमें 1 मिनट से ऊपर ज़ाहिर बात है इजाज़त नहीं देता। तो हम इसको कह देते हैं कि मुझे 50 सेकंड की एक कहानी लिख दो, तो उस हिसाब से कहानी लिख देगा। और अगर हमने इस तरह कहानी लिखवानी कि मुझे 1 घंटे की कहानी लिख दो कि जो हम वीडियोस के अंदर डाल सकें, जिसकी रेशो 16:9 होती है, तो उस हिसाब से फिर हमें क्या है कहानी लिख कर दे देगा। तो इसको हम किसी तरह भी कहानी लिखवा सकते हैं, अल्फाज के हिसाब से भी लिखवा सकते हैं, और इसकी मुद्दत के हिसाब से भी, दौरानिया के हिसाब से भी लिखवा सकते हैं कि इसका दौरानिया कितना होना चाहिए, उस हिसाब से भी हम इससे कहानी लिखवा सकते हैं। अब ये पूरी कहानी की जो है वो सीन और विजुअल, वॉइस ओवर और उसकी जो मौसीकी है उसको क्रिएट कर रहा है। आप इसको एक एक चीज़ करके भी क्रिएट करवा सकते हैं और ज़्यादा चीज़ें करके भी क्रिएट करवा सकते हैं। तो ये इस तरह हो गया जी, ये बन रही है, भी कहानी मुकम्मल हो रही है। बस ये अज़ाफ़ी रहनुमाई दे रहा है, साथ म्यूज़िक कहाँ से बदलना है, कैसे बदलना है, ठीक है जी, ये सारा बता रहा है, सारा प्रोसेस बता रहा है। अब यूट्यूब थंबनेल का आइडिया भी दे रहा है, ठीक है जी, साथ साथ आगे फिर ये ज़ाहिर बात है एंड में कुछ ना कुछ जो चीज़ें हैं वो बताता रहता है, क्योंकि मैं इससे वर्क लेता रहता हूँ। तो आगे उसी हिसाब से बता रहा है कि मैं इसको आपको एडिटिंग के बारे में कुछ मशवरा दे सकता हूँ, क्योंकि मैं कभी कभार जब कुछ समझ नहीं आ रहा था तो इससे एडिटिंग के बारे में मशवरा लेता हूँ। तो ये तो इस तरह हमने इसको एक ट्रेन कर लिया, ये इस पर फिक्शन के लिए हमने इसको लिखवाना शुरू कर दिया। अब हमने एक नया काम करना है, तो हम इसमें नया टैब खोल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अब इसी के अंदर अगर हम काम करेंगे तो वो मिक्सअप करेगा चीज़ों को, कि एक में कहानी लिखवा रहा है, फिर अगले में जाके कॉलम लिखवा रहा है। अब इसको हम करते हैं। अब हमने इस चैट में नॉन फिक्शन कॉलम, नॉन फिक्शन तहरीर लिखनी है या लिखनी है, हिदायत याद रखना, ठीक है जी। अब हम इसको कहते हैं कि ईरान और यूएसए वार का क्या फैसला हुआ इस्लामाबाद में, इस पर एक शॉर्ट कॉलम लिख दें। तभी हमें उसके हिसाब से कॉलम लिख देगा। अब हम इसमें जिस तरह पहले एक एरर आ रहा था कि मैं उसमें कहानी लिखवाने की कोशिश कर रहा था, वो कहानी नहीं लिख रहा था। इसके अंदर हम कहानी लिखवाने की कोशिश करेंगे तो वो कहानी नहीं लिखेगा, ठीक है जी। अगर फिर भी एरर दे तो हम इसको दोबारा इंस्ट्रक्शन देंगे कि इसके अंदर नॉन फिक्शन ही लिखना है। एक बात याद रखिएगा, किसी भी बोर्ड को यूज़ करते हुए आपको ढीठ बनना पड़ता है, पेशेंस से काम लेना पड़ता है, इरिटेट नहीं होना। अगर बंदा इरिटेट हो गया तो फिर ये बंदा वर्क सही तरह नहीं कर सकता, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये हिदायत को सही तरह उस पर अमल दरामद नहीं करता। इसको बार बार कहकर हिदायत पर अमल करवाना होता है। अब हम इसको कहते हैं
उमरू अयार की कहानी लिख दो। देखा, अब देखिए इसमें कहानी नहीं लिख रहा, कहते नहीं मैं फिक्शन नहीं लिखूंगा। ठीक है जी, अब हम उसमें पहले वाले में चले जाते हैं। ठीक है जी, अब बाज़ दफ़ा ये क्या है, सारे पे इम्प्लीमेंट कर देता है। अब हम इसको कहते हैं खालिद और अरसलान पर एक कहानी बना दो, मॉरल कहानी हो और 30 सेकंड की हो, 30 सेकंड की हो बस। अब ये भी इतनी वाज़े नहीं है, हमें और वाज़े इंस्ट्रक्शंस देनी चाहिए। ये तो मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। ये देखें, इस टाइम में वो कहानी लिख रहा है और उस टाइम में वो कहानी नहीं लिख रहा। ये देखें 30 सेकंड की कहानी लिख दी, क्योंकि हमने उसको गाइड कर दिया है एक दफ़ा कि इसके अंदर आपने क्या काम करना है और ये कहानियों वाले के अंदर आपने क्या काम करना है और इस नॉन फिक्शन के अंदर आपने क्या काम करना है। फॉर एग्जाम्पल इसको कहते हैं श्रीलंका की शॉर्ट हिस्ट्री लिख दो 200 वर्ड्स में। अब ये ज़ाहिर बात है, ये नॉन फिक्शन है, यह कहानी नहीं है, यहाँ ये फ़ौरन लिख देगा क्योंकि हमने यहाँ से कहानी तो नहीं लिखवा रहे। इस तरह आप अपने हर चैट को जो है वो ट्रेन कर सकते हैं। आपको बार बार जो है वो ट्रेन नहीं करना पड़ता। इसके अंदर एक अलहदा ऑप्शन भी है ट्रेन करने का, जहाँ आप एक दफ़ा क्रिएट कर देंगे तो आपको बार बार क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। वो हम आगे जाकर बताते हैं। ठीक है जी, थॉट्स फॉर कपल ऑफ सेकंड्स, वो सोच रहा है। थिंकिंग पर थोड़ा सा टाइम लेता है और ये बेटर है, थोड़ा सा टाइम देना उसको बेहतर है बनिस्बत इसके कि आप इंस्टेंट रिप्लाई करें और आपको रिज़ल्ट इतना अच्छा ना आए। आप किसी भी ये जो आप तहरीर लिखवा रहे हैं, चाहे कॉलम हो कहानी हो, तो उसमें एक चीज़ लाजमी ऐड किया करें कि इसको इंसानी अंदाज के अंदर लिख दें, ताकि किस पढ़ने वाले को ये पता ना चल सके कि ये हमने बोर्ड से लिखवाया, तो वो और कहानी को बेटर कर देगा और आपकी तहरीर को बेटर कर देगा। अगर आप यहाँ इसको पढ़ेंगे ना, पढ़ने के बाद आप दोबारा जब इंसानी अंदाज में कहेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वाकई ही दोनों में फ़र्क होता है। तो ये उसने हमें 200 अल्फाज की एक श्रीलंका की जो हमने है उसने हमें एक तारीख लिख कर दे दी है। ये तो 2 काम हो गए, कहानी लिखवाना, बल्कि 3 काम हो गए, कहानी लिखवाना, उसको सीन बाय सीन कन्वर्ट करना और फिर उसकी प्रॉम्प्ट बनवाना। फिर हमने नॉन फिक्शन के अंदर देखा कि नॉन फिक्शन के अंदर ये किस तरह काम करता है। ये तो होगी सिंपल रिसर्च हो गई। ठीक है, अब हम जाते हैं इसी न्यू चैट के अंदर। इस न्यू चैट के अंदर अब हमने इमेजेस क्रिएट करवाने हैं। एक बात याद रखिएगा, फ्री वर्जन के अंदर सिर्फ आप 3 इमेजेस क्रिएट करवा सकते हैं और उस पर ज़्यादा टाइम लगता है। मेरे पास चूँकि पेड वर्जन है, यहाँ आपको साइड पर नज़र आ रहा होगा, ये देखें प्लस बिजनेस वर्जन है मेरे पास, तो इसके अंदर मैं जितने मर्जी इससे इमेजेस जनरेट करवा लूँ तो ये उसको जनरेट करता रहता है और इसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है। जितने भी AI सॉफ्टवेयर्स हैं, जितनी भी AI कंपनीज जो इसको पेड में करती हैं, तो एक बात याद रखिएगा, पेड जो है वो उसका इस्तेमाल करने का मज़ा ही अलग है फ्री की निस्बत। मैंने चूँकि फ्री भी यूज़ किए हुए हैं और पेड भी यूज़ किए हुए हैं, तो फ्री इतना अच्छा काम नहीं करता जितना पेड करता है। हाँ, जब आप फ्री यूज़ कर रहे हो तो आपको यूँ ही लगेगा कि यार ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन जब आप पेड यूज़ करेंगे और उसका फ़र्क देखेंगे, इसके अंदर आप इंस्ट्रक्शंस ऐड कर सकते हैं अपनी, वो आपको गलत गाइड ना करे। फ्री के अंदर तो जो आप कहेंगे ना, वो कहेगा हाँ जी आप ठीक कह रहे हैं, आपकी हाँ में हाँ मिलाता जाएगा, जी आप ही बात से हैं, सब कुछ आपको ही पता है, किसी और को कुछ पता ही नहीं है, बस वो आपकी हाँ में हाँ मिलाता जाएगा। इसके अंदर आप इसको एक दफ़ा इंस्ट्रक्शन दे के गाइड कर दें तो ये आपको फिर वो हिलने नहीं देगा। जैसे देखा, वो इंस्ट्रक्शन शुरू में दी हुई थी तो मुझे वो टैब के अंदर लिखने नहीं दे रहा था, फिर इंस्ट्रक्शन दे के उसको ख़त्म करवाना पड़ा, तो फिर जाके उसने मुझे कहीं वर्किंग करने दिया, अदरवाइज़ मुझे वर्किंग ही नहीं करने दे रहा था। तो पेड का एक अपना मज़ा है। मशवरा यही है कि थोड़े से पैसे लगाकर आप इसका पेड वर्जन ही यूज़ कर लें। तो उसके मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार होते हैं, पेड वर्जन सस्ते में मिल जाते हैं, लेकिन वो हम यहाँ यूट्यूब पर नहीं बता सकते क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी जो है वो बड़ी सख्त है, वो फिर हमारा चैनल ही उड़ाकर परे करती है। तो इस वजह से ये चीज़ें हम नहीं बताते। तो ये चीज़ें कुछ हम अपने कोर्सेज़ के अंदर बताते हैं, तो लोगों को भी किस तरह और कहाँ से बाय किए जा सकते हैं जिसमें ये अच्छा वर्क करते हैं। ठीक है जी, तो अब हम इससे इमेज जनरेट करवाते हैं। तो इससे हम इमेज देखते हैं किस तरह इमेज जनरेट करवाए जाते हैं। तो यहाँ से हम एक फॉर एग्ज़ाम्पल इसको कहते हैं कि एक मुझे
मैंने इसको कहा कि एक मुझे ऐसा इमेज बना दे जिसमें एशियन शख्स ज़ारो कदार रो रहा हो। शख्स लिखा गया फिर भी ये इसको कैच कर लेगा, क्योंकि अगर इसको कहते हैं एक शख्स ज़ारो कतार रो रहा हो, सिंपल कैच था, तो वो कोई अफ्रीकन भी हो सकता था, चाइनीज़ भी हो सकता था, जापानीज़ भी, कुवैती भी, नेपाली भी, और अफ्रीकन भी हो सकता था, अमेरिकन भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो जैसे आप इसको इंस्ट्रक्शंस देंगे वैसे ही आ जाएगा। अब ये भी बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं है, ये भी नॉर्मल है, जिससे मैं इसमें तो जस्ट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इमेज कैसे जनरेट करवाते हैं। तो ये इमेज जनरेट हो रहा है, इसकी स्पीड हालांकि अभी ज़्यादा है, फिर भी आप देख रहे हैं कुछ टाइम लग रहा है, ठीक है जी। तो फ्री के वर्जन में तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। ये देखें जी, उसने जी एक एशियन शख्स की जो इमेज है जो वो जनरेट कर दी है। अब हम अगर इसको कहें एक पाकिस्तानी शख्स की इमेज बना दें जो बहुत ज़्यादा हंस रहा हो, तो अब ये पाकिस्तानी के हिसाब से बना देगा इमेज। तो ये इमेज जनरेट कर रहा है। मैं आपको दोबारा बता दूं, फ्री वर्जन में आप सिर्फ 3 इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद आपको वेट करना होता है। वहाँ चैट की ऑप्शन भी अब बहुत ज़्यादा जल्दी ख़त्म होने लगी है। पहले आप चैट लंबी कर सकते थे, अब चैट की ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा जल्दी ख़त्म हुई थी, फिर 4-5 घंटे वेट करना पड़ता है। उसके बाद दोबारा जो है वो हम क्या कर सकते हैं, जाकर उसके साथ चैट कर सकते हैं, चीज़ें जनरेट करवा सकते हैं। तो ये उसने पाकिस्तानी की बजाय उसने ये एक एशियन शख्स ही बना दिया है। तो इसको मज़ीद करेंगे तो ये उसको समझ जाएगा। तो ये उसी इमेज को उसने हंसते हुए बना दिया, ठीक है जी। तो ये अब देखें, अच्छा एक और चीज़, अब इसी को देंगे ना हम, ये देखिए इसी को दोबारा पेस्ट कर दें, तो अब ये देखिएगा, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं एक ही प्रॉम्प्ट को अगर आप 2-3 दफ़ा पेस्ट करें तो 2-3 दफ़ा वो मुख्तलिफ रिज़ल्ट देता है। बहुत कम होता है कि वो एक ही जैसा रिज़ल्ट दे। अगर आप एक ही प्रॉम्प्ट को बार बार पेस्ट करेंगे तो रिज़ल्ट थोड़ा थोड़ा सा वो मुख्तलिफ ज़रूर करता है। तब ये बन रहा है, स्केच बन रहा है। इसके आगे फिर हम एक और चीज़ मैं बताता हूँ आपको कि किसी इमेज को किस तरह चेंज करते हैं, उसके नए नक्श वगैरह, अभी भी उसने वही बना दिया है, ठीक है जी। तो हम इसको फिर कॉपी करते हैं, कॉपी करके उसको कहते हैं कि एक पाकिस्तानी शख्स की इमेज बना दीजिए बहुत ज़्यादा हंस रहा हो, और ऊपर वाली इमेज से शख्स मुख्तलिफ हो और उसने सलवार कमीज़ और पगड़ी पहन रखी हो। देखिए सम टाइम ये ना इस तरह करता है कि वो एक ही इमेज को जनरेट करना शुरू कर देता है या एक ही जैसी चीज़ें करना शुरू कर देता है। तो एक प्रॉम्प्ट चेंज करके देख लें, प्रॉम्प्ट चेंज करने के बाद अगर उसको चेंज कर दे ठीक, नहीं तो आप यहीं इसको कैंसिल करके न्यू चैट के अंदर जाके दोबारा शुरू करेंगे तो वो दोबारा वर्क करना शुरू कर देगा। ये होता अक्सर क्यों है, जब उस पर आप बहुत ज़्यादा टाइम वर्क करते हैं तो इस तरह करना शुरू कर देता है। आज इस पर मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है, इस पर तकरीबन मैं ज़ोहर से बैठा हूँ और अभी रात का 1 बज रहा है, तो इस पर मैं मुसलसल काम कर रहा हूँ। 2 दफ़ा तो मेरी रिकॉर्डिंग जो है वो इस पर ख़राब हो चुकी है। जो मैंने आपको शुरू में बताया कि मैंने पहले रिकॉर्डिंग की तो पता चला कि मेरा माइक ही ऑन नहीं था, फिर मैंने दूसरी दफ़ा रिकॉर्डिंग की, पता चला मैंने रिकॉर्डिंग ही ऑन नहीं की। तो ये 2 दफ़ा तो मुझसे रिकॉर्डिंग ख़राब हो चुकी है। पूरी मैंने इसका जो ट्यूटोरियल बनाया था वो सारा ख़राब हो चुका था। मैं तीसरी दफ़ा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, गले में भी दर्द हो रहा है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं रिकॉर्डिंग करके सोऊं। अब वो उसको ऐड कर रहा है, वो लिखा रहा था कि मैं इसके अंदर एडिंग टचेस कर रहा हूँ। ये देखा, अभी भी देखा इसको चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। इसका आसान हल ये है कि हम न्यू चैट के अंदर चले जाएं। ये देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। अभी हम न्यू चैट के अंदर जाते हैं तो ये थोड़ी सी गड़बड़ कर रहा है, तो हम न्यू चैट के अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ हम ऐसे करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। ये ओह, हमने तो ऊपर तो कोई है ही नहीं शख्स, चलें फिर भी इंशाल्लाह ये चेंज कर देगा। हाँ ये ना थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। देखा जी, ये होता है। अब देखिए उसके अंदर गड़बड़ कर रहा था, और ये अच्छी बात होगी कि चलें सामने आ गई और आपको भी समझ आ गई। तो बाज़ दफ़ा ये इस तरह करता है कि उसी चैट के अंदर जो है वो गड़बड़ करना शुरू कर देता है। तो ये इस चैट के अंदर जो था वो गड़बड़ कर रहा था हमारी, इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो उसका आसान हल यही होता है, प्रॉम्प्ट बदल कर देख लें, अगर वो चेंज करता है ठीक, नहीं तो न्यू चैट के अंदर जाकर दोबारा वर्क शुरू कर दें। ये तो हो गया एक तरीका। अब हम किसी भी पिक्चर को अपलोड करके उसके अंदर हम चेंजिंग्स भी करवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने इसके अंदर इसको ऐड किया, तो इसके अंदर हमने कोई तब्दीली करवानी हो,
बल्कि ये तब्दीली तो मैं आपको किसी और जगह दिखाता हूँ। ये मैं दिखाता हूँ कि अगर आपको कोई इमेज है, अगर आपने इमेज क्रिएट करनी है उस जैसी, अब आपको समझ नहीं आ रहा कि यार हम वो इमेज कैसे क्रिएट करें, तो उसका आसान हल ये है कि वो इमेज आप करें अपलोड। ये इमेज हमने कर दी अपलोड, ठीक है। अब क्योंकि लोग अक्सर कहते हैं कि प्रॉम्प्ट दे दें, तो उनको बाज़ दफ़ा प्रॉम्प्ट देने में बहुत मसला आता है। तो उसका हल क्या है, जो आपने कहीं इमेज देखी फेसबुक पर, किसी भी जगह आपने इमेज देखी, उस इमेज को डाउनलोड कर लें और इधर आके इमेज को अपलोड करें और इसको कहें मुझे इस इमेज का प्रॉम्प्ट दे दें। तो ये आपको उस इमेज का प्रॉम्प्ट निकाल कर दे देगा, ये इमेज किस तरह बना है। ये जी प्रॉम्प्ट आ रहा है नीचे, थिंकिंग कर रहा है। कहता है ये लो जी डिटेल प्रॉम्प्ट, ये प्रॉम्प्ट दे दिया उसने जी, ठीक है जी। अब हम यहाँ से किसी भी इमेज को अपलोड करते हैं जिसको इस जैसा बनाना है, तो हम डेस्कटॉप पे जाते हैं, ये इमेज उठाते हैं, हम इसको अपलोड कर देते हैं यहाँ पर। तो ये इसने और अच्छा प्रॉम्प्ट लिख दिया है, ये हम नीचे वाला प्रॉम्प्ट यूज़ करते हैं, अब ऊपर वाला भी यूज़ कर सकते हैं, वो नीचे खुद ही बता रहा है कि अगर आप और अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो ये वाला प्रॉम्प्ट यूज़ करें। अच्छा, ये बाज़ दफ़ा ना साथ नेगेटिव प्रॉम्प्ट देता है, तो आप उसको साथ लाजमी ना फिर ऐड किया करें प्रॉम्प्ट के। यहाँ से आते हैं तो हम यहाँ शिफ्ट इंटर करेंगे तो ये नीचे आ जाता है, इंटर करके अंदर नहीं जाएगा। तो ये यहाँ पर हम इस तरह इसको भी पेस्ट कर दिया, हम इसको हम सेंड करते हैं, ठीक है जी। ये इंशाल्लाह इस तरह ये अपनी पिक्चर को क्रिएट कर देगा। ये उसने प्रॉम्प्ट निकाल कर दे दिया। तो ये एक प्रॉम्प्ट निकालने का तरीका है जो आसान हल है, ठीक है जी। अगर इसको हमने किसी और सॉफ्टवेयर में जनरेट करना हो तो उस हिसाब से उसको बता दें कि ये मैंने जेमिनी के अंदर या मिड जर्नी के अंदर ये हमने करना है, तो आप ऐसे करें कि मुझे उस हिसाब से अपना कहते हैं कि प्रॉम्प्ट लिखते हैं। अब ये थोड़ी सी गड़बड़ करना ज़्यादा शुरू कर दी है इसने। उसकी रीज़न ये है कि मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर लिया। मैं दोबारा उस इमेज को अपलोड करता हूँ, तो ये अपलोड किया मैंने। अब इसके अंदर मैंने ये लिखा, ये लीजिए, आज थोड़ी सी गड़बड़ ये ज़्यादा कर रहा है। अभी जो पहले 2 वीडियोस बनाई थी वो इससे बहुत अच्छी और ज़बरदस्त बनी थी, उसमें ये बिल्कुल गड़बड़ नहीं कर रहा था। तो ये मुसलसल यूज़ की वजह से बाज़ दफ़ा इस तरह करता है। अब ये देखा, ये फिर वही गड़बड़ कर रहा है, तो ये दोबारा उसी तरह गड़बड़ कर रहा है। अब हम इस करते हैं, इसको फिर नए चैट के अंदर ले जाते हैं, नए चैट के अंदर ले जाते हैं, ऐड फ़ोटो करते हैं। ये ऐड फ़ोटो किया हमने और यहाँ हमने वो प्रॉम्प्ट लिखवाया था। अच्छा, 1 मिनट, यहाँ से हम ऐसे करते हैं, इसको यहाँ पेस्ट करते हैं, नेगेटिव प्रॉम्प्ट को लेते हैं, यहाँ हम पेस्ट करते हैं, इस सारे को कॉपी करते हैं, न्यू चैट के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। न्यू चैट के अंदर आ गए, यहाँ हमने पेस्ट किया और इसको सेंड कर दिया हमने। तो ये इमेज जनरेट हो रहा है। अब इंशाल्लाह ये इमेज बना देगा। तो ये सारी गड़बड़ इसी वजह से हो रही है कि चूँकि बार बार मुझे इन रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है, उसमें इसका यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया था। एक ही तरह की चीज़ें मैं इससे बार बार जनरेट करवा रहा था। पिछली वीडियोस के अंदर भी मैंने इससे इसी तरह की चीज़ें जनरेट करवाई थी, इसलिए ये ज़्यादा गड़बड़ कर रहा है। ये देखें जी, ये उसने जनरेट कर दिया। बाज़ दफ़ा इस तरह करता है, तो इसमें आपने परेशान नहीं होना, ठीक है जी। तो आप उसको नए चैट के अंदर ले जाएंगे तो ये जनरेट हो जाएगा। अच्छा, अभी एक और जुगाड़ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है जी। ये देखिए, मैं इसी आपने ये देखा होगा 3-4 में इमेज जनरेट करवा चुका हूँ। उसके अंदर क्या किया है जी, इसने गड़बड़ नहीं की, ठीक है जी। अब हम नए चैट के अंदर आ गए हैं,
तो अब एक और चीज़, अगर आपको प्रॉम्प्ट भी नहीं बनाना आ रहा तो उसका हल ये है कि आप एक इमेज ऐसे करेंगे, अपलोड करेंगे, और दूसरे इमेज को आप जो जिस तरह का इमेज आपने बनाना है डाउनलोड में जाके आप करेंगे आप, तो आप ऐसे करेंगे। इसको ये वाला इमेज, ये वीडियो है सॉरी, तो हम ले लेते हैं ये इमेज ले लेते हैं, ठीक है जी, ये इमेज ले लेते हैं। इसमें हम कहते हैं कि मैंने 2 इमेज अटैच किए हैं, पहले इमेज 1 को इमेज 2 की तरह बना दो। अभी देखिए ये भी क्लियर इंस्ट्रक्शन, ये एक जुगाड़ है कि कभी अच्छा वर्क कर जाता है, कभी अच्छा वर्क नहीं करता। 2 तरीके ज़्यादा अच्छे हैं। एक, आपको खुद प्रॉम्प्ट लिखनी आती हो तो वो सबसे अच्छी बात है कि जितनी अच्छी आप हिदायत देंगे वो सबसे अच्छा बनेगा, और दूसरे नंबर पर आप उसकी प्रॉम्प्ट निकाल लें। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आप उसको हिदायत दें, उससे ये है कि बंदे का अपना दिमाग भी चलता रहता है, डिफरेंट आइडियाज़ आते रहते हैं। डिज़ाइनिंग जो है वो टोटल आइडिया का नाम ही है। जब आइडिया सामने आ जाता है फिर तो हर बंदा ही समझ जाता है कि यार मैं इस तरह वर्क करूँगा। अब ये तरीके आप जब देखेंगे तो आप कहेंगे यार ये तरीके तो बड़े आसान है, लेकिन बात यह है कि जहन में आने की बात है कि आपके जहन में आइडिया कैसे आया है, आप उसको किस तरह वर्क करते हैं। इसी तरह वीडियोस को देख के आइडियाज़ आ जाते हैं। आप डिफरेंट चीज़ें देखते रहें और सोचते रहें कि इसको मैं किस तरह AI से जनरेट करवा सकता हूँ, तो उसी तरह आइडियाज़ आपके दिन ब दिन जो आइडियाज़ है वो निकलते जाते हैं। स्टार्ट के अंदर वो बिल्कुल अजीब से लगते हैं, वो इतना अच्छा वर्क नहीं करते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो क्या कहते हैं आइडियाज़ वर्क करना शुरू कर देते हैं। अभी ये देखें, ये बना रहा है इस पर, तो इमेज क्रिएट कर रहा है, देखिए इसका क्या रिज़ल्ट आता है। इसका मैं आपको पहले बता दूं, कभी बहुत अच्छा वर्क करता है और कभी बहुत ऐसे बस नॉर्मल सा वर्क करता है, कभी बहुत अच्छा वर्क कर देता है ये। तो बहरहाल इसने अच्छा वर्क कर दिया है, ये देखें, ये उसने बना दिया, ये भी उसने बना दिया, ठीक है जी। मैं कहता हूँ इमेज 1 इज़ बेटर। ये मेरे बड़े भाई हैं, मैं इनकी इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ, तो ये उनको सेंड करूँगा। इमेज 1 को डाउनलोड करके ये मैंने आपकी तस्वीर के साथ काम किया है, तो ये उनको सेंड करूँगा, ठीक है जी। ये मैंने इमेज बना ली है इनकी, तो ये चीज़ें बन गई। तो यानी 3 चीज़ें हमने भी कवर कर ली हैं। कहानी लिखवाना, तो उसी के अंदर फिर उसको अपना कहते हैं हमने यूट्यूब के लिए सीन बाय सीन बनवाना, उसके विजुअल्स भी पूछ लिए, वॉइस ओवर भी पूछ ली और मौसीकी भी पूछ ली। फिर उसको लेके हम नॉन फिक्शन के अंदर फिर हमने देखा कि उन टैब को या उन न्यू चैट्स को हम किस तरह की लॉक कर देते हैं। लॉक से मुराद कि वो हमारी उसी बात को समझ रहा है, उसके अंदर दूसरी चीज़ को वर्क नहीं करने दे रहा। तीसरे नंबर पर आकर हमने देखा किस तरह इमेज जनरेट करवाते हैं और किस तरह इमेज को एडिट करते हैं। पहले यही काम फोटोशॉप के अंदर आपको मैन्युअली करना पड़ता था, अब जस्ट आपने उसको इमेज देनी है और उसके साथ इंस्ट्रक्शंस देनी है कि यूं कर दें, ये तब्दीलियां कर दें। बस वो इंस्ट्रक्शंस आपने क्लियर देनी है, अच्छे तरीके से देनी है, अच्छे तरीके से हिदायत उसको देनी है। बिल्कुल ऐसे गैर मुबहम अंदाज में नहीं देनी, यानी मजहूल अंदाज में नहीं देनी, यानी अनक्लियर नहीं देनी, ठीक है जी। अब हम जाते हैं इसकी दूसरे टैब के अंदर। ये न्यू चैट आपने देख लिया। न्यू चैट के अंदर हमने हर वर्क जो है वो नया जो काम शुरू करना होता है, मशवरा यही है कि आपने जो भी काम करना हो उसके लिए न्यू चैट ओपन करें। हर डिफरेंट काम के लिए डिफरेंट चैट को ओपन करें, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगी। कंप्यूटर भी ज़्यादा हैवी नहीं होगा, या लैपटॉप है तो लैपटॉप भी ज़्यादा हैवी नहीं होगा और वर्क भी अच्छा करता रहेगा। आपने देखा कि मैं ये चैट्स खोल रहा था तो वो वर्क अच्छा नहीं कर रहा था, मैंने न्यू चैट की तो अब हर चीज़ वर्क अच्छा कर रही है। अब हम जाते हैं सर्च चैट्स के अंदर। अब जो भी हम चैट्स कर रहे हैं, ठीक है, ये उसके बारे में आ रहा है। जैसे कहानी लिखवाना के अंदर हम आ जाते हैं, ठीक है जी। ये जो चैट्स हैं जी, ठीक है जी, ये हमारी वो आ गई, जिसे हमने खालिद रसलान की कहानी लिखवाई थी, ठीक है जी। और नॉन फिक्शन तहरीर के अंदर ये हमारा ये यहाँ पर वैसे ही जो टैब है यहाँ पर भी पड़े होते हैं, हमें नज़र आ रहे होते हैं। अगर हमें ना मिले तो यहाँ आके हम यहाँ पर सर्च लिखकर उसको सर्च भी कर सकते हैं, जिससे हमें वो हमारी वो टैब जो है वो आसानी से मिल जाएगा अगर हमें नाम याद है। अब तीसरे नंबर पर लाइब्रेरी में आते हैं। ये टैब किस चीज़ के बारे में, हमने इसके अंदर जो कुछ अपलोड किया होगा ना वो यहाँ पर पड़ा होगा, बस इससे ज़्यादा इसका और कोई काम नहीं है। इमेजेस के अंदर इमेजेस पड़ी होंगी, फाइल्स के अंदर फाइल पड़ी होंगी, ऑल करेंगे तो सब कुछ आ जाएगा। जैसे ये फॉर एग्जांपल ये हमने खोलते हैं तो ये तस्वीर हमने अपलोड की थी, ठीक है जी। ये देखें, ये तस्वीर अभी हमने अपलोड की है तो वो शो कर रहा है कि ये आपने तस्वीर अभी अपलोड की थी, तो ये उसकी एक लाइब्रेरी बता देता है कि आपने ये सब कुछ इसके अंदर अपलोड किया है। तो हम आते हैं इसके चौथे टैब के अंदर, ऐप्स के अंदर। ये बहुत काम की चीज़ है और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके अंदर ये है कि अगर आप किसी ऐप के अंदर काम कर रहे हो, जैसे अभी बस है, एक्वावेदर है और डिफरेंट ऐप्स हैं, ये एडोबी एक्रोबैट है,
ठीक है, एडोबी एक्सप्रेस है, ये डिफरेंट ऐप्स हैं इसके अंदर मौजूद हैं। आप अपनी ऐप को इसके साथ अटैच कर सकते हैं, यानी चैट जीपीटी के साथ अटैच कर सकते हैं और चैट जीपीटी के साथ अंदर बैठकर ही आप अपने ऐप के अंदर काम कर सकते हैं। जैसे मैं दिखाता हूँ कि फोटोशॉप को मैंने इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है जी, एडोबी फोटोशॉप को मैंने इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है। ये देखें यहाँ पर टिक का निशान आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। जब आप किसी भी ऐप पर क्लिक करेंगे, जिस ऐप में आप काम करते हो, तो यहाँ कनेक्ट का लफ्ज़ लिखा आएगा, ठीक है, कनेक्ट वर्ड लिखा आएगा, कनेक्ट का बटन बना होगा, आप कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट चैट करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट चैट हो जाएगी। अब हम सबको पता है, जिसने कभी कभी थोड़ी सी भी एडिटिंग की हो या फोटोज़ बनाए हो, इमेजेस बनाए हो, तो उसको पता है एडोबी फोटोशॉप जो है वो बहुत अच्छा वर्क करता है इसकी कलर स्कीम के बारे में, बैकग्राउंड चेंज करने के बारे में, कलर को शार्पन करने के बारे में, यानी मुख्तलिफ एडिटिंग जो है, इमेज एडिटिंग जो होगी वो फोटोशॉप के अंदर सबसे अच्छी होती है। तो अब हमने क्या कर लिया, अपने चैट जीपीटी को फोटोशॉप के साथ अटैच कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। इसका रिजल्ट जो है वो पिछले इमेजेस से ज़्यादा अच्छा आता है। फॉर एग्जांपल ये मैं इसको चेंज करता हूँ, इसको भी सिंपल कहता हूँ मैं, इसको और कोई बात नहीं कहता, मैं इसको कहता हूँ सिंपल, एक मुबहम सी, इसकी अनक्लियर सी, इसको मैं एक देता हूँ, क्या कहते हैं, प्रॉम्प्ट देता हूँ, हिदायत देता हूँ, हालांकि मुझे क्लियर देनी चाहिए। मैं कहता हूँ इसके क्लोथ्स का कलर चेंज कर दो। अब वो अपनी मर्जी से कर देगा, मैंने अपनी मर्जी से कराना हो, लाल, पीला, नीला, हरा, जो भी करवाना हो तो उस हिसाब से वो मेरे इस कलर्स को चेंज कर देगा। और अगर मैंने इसके ऊपर भी इसको कोई और लिबास पहनाना हो तो वो भी उस हिसाब से इसको चेंज कर देगा। इसके अंदर एक और मज़े की चीज़ आती है, ये ज़रा इमेज क्रिएट हो जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ, वो ओपन हो जाएगा। वो ये है कि जैसे ये बनाएगा साथ मुझे ये ऑप्शन देगा कि आप ये ऑप्शंस भी यूज़ कर सकते हैं आप, यानी ये मुझे प्रॉम्प्ट बना कर देता है। कहते हैं इसको खोलें तो डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स के ऑप्शन दे रहा था कि आप ये प्रॉम्प्ट यूज़ करके देखिए, आप ये प्रॉम्प्ट यूज़ करके देखें। मैं आपको अभी वो यूज़ करके दिखाता हूँ। इमेज इसमें यह है कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, न्यू चैट के अंदर टाइम जो है वो कम लगता है, इसके अंदर टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, लेकिन इसका रिजल्ट जो है वो ना ठीक होता है। अभी देखा, अभी कहता है सीधा बताओ, इसने चेंज नहीं किया। इसको मैं कहता हूँ जी मैरून कर दो, क्योंकि उसको जो है वो इंस्ट्रक्शन जो है मेरी क्लियर नहीं लगी, तो उसने मुझसे पूछ लिया। बाज़ दफ़ा ये कर देता है, बाज़ दफ़ा नहीं करता। हम जब भी इसको प्रॉम्प्ट इस तरह की देंगे जो क्लियर नहीं होगी, तो बाज़ दफ़ा वो चीज़ें कर देगा और बाज़ दफ़ा चीज़ें नहीं करेगा। वो उसको क्रिएट कर रहा है, ये देखें फोटोशॉप के अंदर ये चीज़ क्रिएट हो रही है। वेट करते हैं, तो इसका थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि टाइम जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। न्यू चैट के अंदर ज़रा जल्दी क्रिएट हो जाती है, इसके अंदर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन इसका रिज़ल्ट जो है वो उससे बेटर होता है। आपने इमेजेस जनरेट करवाने हो तो इसको अटैच करके साथ इमेजेस जनरेट करवाएं तो इसका रिज़ल्ट भी अच्छा आता है, उसकी निस्बत बहुत अच्छा आता है इसका रिज़ल्ट। अब देखते हैं, अब सिर्फ इंतज़ार ही है और कुछ भी नहीं है, इंतज़ार हम करते हैं। और ये बना रहा है, पहले इमेज में ये दिखाएगा कि ये रिज़ल्ट इस तरह की, ये देखें जी, उसने ज़बरदस्त किस्म की एक जो हमें क्रिएट करके दे दी है इमेज। देखिए मज़ा आ गया जी, ठीक है जी, इस इमेज को उसने जनरेट किया है, चस्नी आ गई। अब ये देखें, ये पहले वाली थी, अब ये दूसरे वाली थी। अब मैं आपको जो मज़े की चीज़ है दिखाने वाली वो ये देखें, देखता है ये कह रहा है एक्सप्लोर मोर प्रॉम्प्ट आइडियाज़ टू यूज़ विद एडोबी फोटोशॉप फॉर चैट जीपीटी। अब हम इसको खोलते हैं, यहाँ से ओपन लिंक में जाएंगे तो ये हमें मज़ीद प्रॉम्प्ट के खुद ही आइडियाज़ देगा। ये देखें नीचे आ गया, ये देखें, कहता है बैकग्राउंड हम चेंज कर सकते हैं, इसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, हम इसकी चेंज और कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हैं, यानी डिफरेंट आइडियाज़ हैं। यहाँ से हम आकर देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, इसका हम इससे करवाते हैं जी बैकग्राउंड चेंज, ये ठीक है। ये आइडियाज़ बदलते रहते हैं, हम इसको बार बार अगर चेक करें तो ये आइडियाज़ बदलते रहते हैं, ठीक है जी। तो ये हम जाते हैं, इधर जाते हैं। अब हम करते हैं ये जो उसने हमें प्रॉम्प्ट दिए है, तो हम ये कहते हैं कि ये कर दो, ये रिप्लेस द बैकग्राउंड विद अ कूल जिराफी वाल, ये जिराफी वाल हम इसको कर देते हैं जी, ठीक है। ये मुझे तो पसंद आई है जी, शेरवानी इसने ये इसने लाल कलर में कर दी है, ठीक है जी। इसको मैं कर लेता हूँ डाउनलोड। डाउनलोड होने में तो टाइम लेगा थोड़ा सा। अभी वर्क कर रहा है उस पर। ये डाउनलोडिंग शुरू हुई, वो डाउनलोड हो रही है जी, इमेज किसी जगह काम आ जाएगी।
ये देखिए इसका रिजल्ट देखिए अब कितना अच्छा है बनिस्बत उन पिक्चर्स के। आपने जब भी इमेज जनरेट करवाने हो तो इसको फोटोशॉप के साथ अटैच करें और उस हिसाब से जनरेट करवाएं तो मज़ा आएगा। अब ये देखें इसका बैकग्राउंड चेंज कर रहा है, ये देखें जी ये रफ़ी वाल कर दिया, ठीक है जी। अब उसने ये कर दिया, ये देखें। अगर इसी इमेज का चेंज करवाना है तो यहाँ से हम पिक्चर अपलोड करें और फिर वो वाली जो हमने कमांड की थी तो इस पिक्चर का कर देगा। अभी क्योंकि हम पहली पिक्चर पे काम कर रहे हैं तो उसने इसको पहली पिक्चर वाला ही दिखाया। अब हम क्या करते हैं, एक और प्रॉम्प्ट लेके आते हैं यहाँ से, तो एक और प्रॉम्प्ट लेके आते हैं जी। यहाँ पर अक्सर प्रॉम्प्ट होती है हाँ ये कि इसको चेंज माई टी शर्ट इनटू जैकेट। अब देखिए यहाँ से हमने खुद कॉमन सेंस है कि टी शर्ट तो हमने पहनी नहीं हुई तो हम टी शर्ट क्यों लिखें, तो हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे ना, या तो शेरवानी लिख दें या लिख दें चेंज माई आउटफिट इनटू जैकेट, सेंड कर दें इसको। थोड़ा सा खुद भी सोचना है कि मैं इसको कमांड क्या दे रहा हूँ। बाज़ दफ़ा हम इसको प्रॉम्प्ट देते रहते हैं और हम परेशान हो जाते हैं कि यार हम प्रॉम्प्ट क्या दे रहे हैं, वो क्या कर रहा है। असल में होता ये है कि हमारी प्रॉम्प्ट के अंदर गलती होती है, हम उसको हिदायत जो है क्लियर नहीं दे रहे होते। अगर हम इसको देते तो ये शायद बिल्कुल भी चेंज ना करता या उसका बिल्कुल इमेज का बेड़ा गर्क कर देता, क्योंकि टी शर्ट तो हमने पहनी नहीं हुई थी। तो आउटफिट तो पहना, आउटफिट में तो ये सब कुछ ही आ जाता है, ठीक है। अब ये इसको एक जैकेट के अंदर तब्दील कर देगा या ऊपर एक जैकेट पहना देगा, इन दोनों में से एक काम करेगा। बहरहाल जी इमेज जनरेट हो रहा है, ये बहुत अच्छी चीज़ है और मुझे ये फीचर बहुत पसंद है इसका। चलो भी चलो, शाबाश जनरेट हो जाओ, जल्दी जल्दी जनरेट हो जाओ। ये चस आई कि नहीं आई, अगले ने नीचे से कपड़े उड़ा दिए पकड़ के, ठीक है जी। तो ये एक ये थोड़ा सा बॉडी बिल्डर टाइप बना दिया उसने ना। तो ये देखें जी, ये जो है आउटफिट जो उसने वो चेंज कर दिया जी, इस तरह था तो उसने इसको इस तरह कर दिया। उसको मज़ीद हिदायत दे के इसके अंदर मज़ीद तब्दीली भी करवा सकते हैं, ठीक है जी। ये तो हो गया ऐप्स का। हम अपनी ऐप्स के हिसाब से जिस ऐप में हम वर्क करते हैं, ठीक है, हम कोई एडोबी एक्रोबैट के अंदर काम करते हैं, वॉइस जनरेटर के अंदर काम करते हैं। हम ये वॉइस जनरेटर है, इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे कि किस तरह हम वॉइस जनरेट करवाते हैं। ये सारी चीज़ें हमने आगे जाके पढ़नी है, ठीक है, उसको मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। तो ये सारे डिफरेंट ऐप्स हैं जो जिसको हम साथ अटैच कर सकते हैं। अब आ जाते हैं डीप रिसर्च के अंदर। जैसे हमने वहाँ एक कॉलम लिखवाया था ना, उससे ये मैं आपको दिखाता हूँ, आपको याद होगा कि ये हमने एक कॉलम लिखवाया है इससे ही, ठीक है जी। ये इस्लामाबाद के ऊपर, ये हमने जो श्रीलंका के ऊपर ये कॉलम लिखवाया है, तो ये एक मुख्तसर कॉलम लिख दिया। अगर डीप रिसर्च के अंदर आकर हम यहाँ टाइप करेंगे तो ये एक बहुत ही डिटेल के साथ हमें कॉलम लिख कर देगा, लेकिन उसके अंदर बहुत टाइम लगाता है। इसके अंदर मैंने ये देखें ये कॉलम लिखवाया अभी से, ये इसको तकरीबन इसने 1 घंटा और 20 मिनट लगाए इस डीप रिसर्च के अंदर। मैंने इसके ऊपर क्लिक करूँगा ना तो ये देखिए इसने मेरा कॉलम लिखवा दिया। ये मैंने पहली रिकॉर्डिंग जब स्टार्ट की थी तब मैंने इसको स्टार्ट किया था, तो ये उसने उस वक्त लिखना शुरू किया था कॉलम। ये देखें ये कॉलम आ गया, अभी मुख्तसर लग रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पूरा ओपन हो जाएगा कॉलम। ये देखें बाकायदा रेफरेंसेस के साथ हो गया, सारे रेफरेंसेस लिखे हुए हैं उसने बहुत डिटेल के साथ, वाक़यात, अहम वाक़यात की टाइम लाइन। ये देखें सही, उसने साथ साथ जो सारे ना लिंक्स भी दिए हुए हैं। तो ये देखें इस कॉलम के अंदर और उस कॉलम के अंदर फ़र्क देखें कितना है, ठीक है। इस कॉलम को इसने किस तरह लिखा है और इस कॉलम के अंदर आपने देखें, ये मैं दोबारा इसको खोलता हूँ और इस कॉलम को देखें कि कितना फ़र्क है। अब देखें, और जब आप इसको पढ़ेंगे तो पढ़ने के अंदर फिर आपको और ज़्यादा फ़र्क फील होगा कि ये देखें ये वाला कॉलम, और हम जाते हैं डीप रिसर्च के अंदर, ये वाला कॉलम। मैं नया इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि फिर तो इसके ऊपर ही बैठे रहेंगे तकरीबन हम 1 घंटा, तो उस कॉलम को लिखता ही रहेगा। तो इस कॉलम के अंदर तो ये फ़र्क हमें नज़र आएगा। इसको मज़ीद भी हम डिटेल के अंदर लिखवा सकते हैं। अभी मैंने इसके साथ पता क्या लिखा था कि इसको एक शॉर्ट सा कॉलम लिख के दे मुझे, ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे। लेकिन ये है कि ये तहकीक करने वालों के लिए, मकालाजात लिखने वालों के लिए, डीप रिसर्च करने वालों के लिए ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। टाइम लगता है लेकिन चीज़ बहुत अच्छी बन जाती है। फिर ये आगे एक चीज़ है कोडेक्स। इसको खोलेंगे तो ये जिस तरह हम उसमें फोटोशॉप के अंदर एक अलहदा टैब खुल जाता है, इसमें खुल जाएगा। इसके अंदर हम गिटहब के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। हम इसके अंदर कोडिंग कर सकते हैं। ये कोडर के लिए होता है कि जो कोडिंग करते हैं ये कोडिंग को समझता है अच्छे तरीके से। हम कोडिंग इसके अंदर भी कर सकते हैं। मैं किसी दिन आपको इसके अंदर कोडिंग भी करके दिखाऊंगा किस तरह कोडिंग की जाती है, किस तरह मुख्तलिफ इंडिकेटर्स वगैरह जो ट्रेडर्स हैं वो यूज़ करते हैं, या मुख्तलिफ चीज़ें इसमें कोडिंग करके किस तरह बनाई जाती है। इधर भी कोडिंग की जाती है, लेकिन ये स्पेशली कोडिंग के लिए एक उन्होंने टैब बनाया, तो इसके अंदर जाकर हम कोडिंग करेंगे तो कोडिंग का रिजल्ट जो है बहुत अच्छा होगा। जिस तरह हम
एप्स के अंदर जाके फोटोशॉप को अटैच करके हम पिक्चर्स बना रहे हैं तो रिजल्ट अच्छा है। जिस तरह रिसर्च इसके अंदर भी हो जाती है, लेकिन हम इसके अंदर रिसर्च करेंगे डीप रिसर्च के अंदर तो रिसर्च जो है अच्छी होगी। अब ये हम GPTs, ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। जिस तरह हम न्यू चैट के अंदर हम खुद इंस्ट्रक्शन दे के उसको कह रहे थे ना कि इसके अंदर आपने कहानी लिखनी है, और इसके अंदर क्या है, एक्सप्लोर GPTs के अंदर आप इसको एक ही दफ़ा ट्रेन कर लेंगे, फिर आपको बार बार ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको यहाँ से हम क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम एक इंग्लिश टीचर क्रिएट कर लेते हैं कि जब भी मैं आपको अपनी कोई तहरीर दूँ, कोई ठीक है जी कोई अपना टॉपिक दूँ, तो उसके अंदर जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हों उसको आपने ठीक करके देना है। उसके अंदर सेंटेंसेस या पंक्चुएशन की जो गलती हो वो आपने ठीक करके देनी है। तो एक दफ़ा हम इसको यहाँ पर बनाकर छोड़ दें, दोबारा जब भी हम आके तहरीर देंगे तो ये यहाँ पर इसको ठीक करके दे देगा। इसको किस तरह क्रिएट किया जाता है इसको हम फिर किसी वीडियो के अंदर देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। इस वीडियो के अंदर मकसद ये था कि आपको इसका तारुफ बताना और मुख्तलिफ चीज़ें बताना। ठीक है जी, इसकी हम नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे हम। अगर आपको फौरी वीडियो चाहिए इसके ऊपर कि किस तरह इसको क्रिएट किया जाता है तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता दीजिए वीडियो के, तो मैं इसको इसी के ऊपर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। नहीं तो मेरा एक और मौजू है, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता मैं इन सारे मौजूद पर वीडियोस बनाऊंगा। तो ये प्रोजेक्ट है, इसके अंदर हम किसी लॉन्ग प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चाहते हैं, यहाँ प्रोजेक्ट का नेम टाइप करें तो यहाँ से प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ये भी मैं आपकी एक अलहदा वीडियो बनाकर दिखाऊंगा इन दोनों के ऊपर कि किस तरह इस प्रोजेक्ट को क्रिएट किया जाता है। लंबे लंबे प्रोजेक्ट को जिसके अंदर ज़्यादा डाटा हमने सेव करना होता है तो यहाँ पर वो प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाता है। जैसे ये प्रोजेक्ट ही क्रिएट हुए हैं हमारे सारे, ये जो रिसेंट टैब्स हैं ये सारे प्रोजेक्ट ही क्रिएट हुए हैं। तो न्यू चैट के अंदर भी काम कर लेते हैं हम, लेकिन ये इन चीज़ों के अंदर आके स्पेशली डिज़ाइन हुए हैं तो इन चीज़ों के अंदर आके ये अच्छा वर्क करते हैं। अब हमारी कोशिश होगी कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं जो है वो आपको यूट्यूब के लिए कहानी किस तरह लिखते हैं, अभी हमने लिखी है, लेकिन शॉर्ट कहानी किस तरह लिखते हैं, उसकी वॉइस ओवर किस तरह करते हैं, उसके इमेजेस जो हैं वो किस तरह जनरेट किए जाते हैं, किस तरह उन इमेजेस को जो है एनिमेट किया जाता है, और करैक्टर की कंसिस्टेंसी जो है सबसे बड़ा मसला होता है यूट्यूब क्रिएटर के लिए कि करैक्टर जो है कंसिस्टेंट नहीं रहते। एक जो है वो इमेज के अंदर और करैक्टर नज़र आ रहा था और दूसरी इमेज के अंदर वही करैक्टर की शक्ल और होती है, उसको किस तरह बरकरार रखते हैं। ठीक है, फिर किसी करैक्टर से आपने डायलॉग बुलवाना है तो वो डायलॉग किस तरह बुलवाया जाता है वो करते हैं। फिर इसकी एडिटिंग है, इसको लो एफर्ट से हाई एफर्ट के अंदर लेके जाना है, इसके अंदर म्यूज़िक किस तरह लगाना है, हमने कैप्शंस किस तरह देने हैं, ठीक है, इसके अंदर ट्रांजिशन किस तरह लगानी है, इफ़ेक्ट्स किस तरह लगाने हैं, इसके अंदर हमने इसको एनिमेशंस किस तरह देनी है, इन आउट और लूप्स की एनिमेशन किस तरह देनी है। अगर तो ये सब कुछ एक ही वीडियो के अंदर कवर हो रहा हुआ और थोड़े टाइम में हो रहा हुआ तो फिर हम एक ही वीडियो में कर लेंगे, नहीं तो इसकी 2-3 वीडियोज़ हम बना लेंगे, तो ताकि हमें समझ आ सके कि हम स्टोरी जो है वो किस तरह क्रिएट करते हैं और किस तरह हम यूट्यूब चैनल जो है वो क्रिएट करके उसके ऊपर हम जो अपनी स्टोरीज़ हैं वो अपलोड कर सकते हैं। तो आप देख रहे थे AI विद अदनान। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके और आपको नोटिफाई हो जाए कि नई वीडियो अपलोड हो चुकी है। और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आपको कोई वीडियो बनवानी है, इसका कोई फीचर समझ नहीं आया या कोई और बात जो समझ नहीं आई तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता दीजिए, मैं उस पर मुकम्मल वीडियो बना दूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।